Hello students, in this video we will discuss about chapter 9 and the name of chapter 9 is Air, Water and Weather. We have already discussed its part 1 in which we have discussed what is atmosphere, what is air consists of and then hot air and cool air. So we have discussed and you have remembered that the cool air which is heavier in weight and the hot air which is lighter in weight. So what happens is I have given an example of a balloon. The balloon which is light in weight, then if we will not pull a balloon, then the balloon goes in upward direction because it is light in weight. And when you fill a balloon with water, then what happen? जब आप किसी बलून को आपने पकड़कर नहीं रखा है, आपने उसे छोड़ दिया, तब क्या होता है, क्योंकि उसमें एयर फिल रहता है, लाइट वेट रहते हैं, तो वो क्या जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं. एंड व्हेन यू फिल दैट पर्टिकुलर बलून विथ वाटर, देन व्हाट हैपन्स, बिकॉज इट इज हैवी इन वेट, हैवियर वेट, वो हैवी हो जाते हैं वेट में, तो वो क्या आते हैं, इट कम्स डाउन. सो व्हाट हैपन्स, द हॉट एयर which is light in weight, it goes in upward direction, and the cool air which is heavy in weight, it comes down. In this particular process, the air blows like this, the wind blows like this. Okay. So this all we have discussed in the previous video. Now in this video we will discuss about, in the part 2 we will discuss about the contents of this video are formation of air currents. Formation of air currents. In this content the land breeze and sea breeze, हम क्या read करेंगे इस particular topic में, how land breeze and sea breeze occurs. Okay, and the second topic is water. In this topic water, we will discuss about the evaporation and the condensation, how rainfall occurs, and what are the processes by which water have all the forms like solid, liquid and gases, how they convert into one another. We will discuss about that. Okay. So let's start this chapter with the first topic, first content, which is formation of air currents. So initially I want to explain what is the difference between wind, breeze and air currents. So when we called wind हम कब बोलेंगे, the moving air is called wind, means जो air move करेगी. Normally हमारे पास जो air होंगे, जो हवा होगी, उसे हम air कहते हैं, but जो air है जब वो move करेगी तब हम उसे wind कहेंगे. अब move भी वो two types से करेगी. एक ऐसा movement होता है air का जिसमें वो बहुत ही fast move करती है, बहुत ही fast move करती है, which we can feel and we can hear also, जिसे हम फील भी कर सकते हैं एंड हम सुन भी सकते हैं. देन दैट इज नोन एज विंड, तब हम उसे विंड बोलेंगे. बट द सूदिंग एयर इज ऑल्सो देयर, मीन्स जब आपका एयर बहुत ही स्मूथ वे से, बहुत ही हल्के से जब मूव करेगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे. एंड देन द breeze is that type of air which we can only feel, we can't hear that. हम उसे सुन नहीं सकते, हम सिर्फ एयर की, आपने कभी सुना होगा जब एयर हवा चल रही होती है तब हमें कई बार सुनाई भी देता है. हवा की जो मतलब एयर की जो आपकी साउंड होती है, जब वो आपको सुनाई देती है ना, तब हम उसे क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है, वो बहुत तेज़ी से चल रही होती है. बट जब हम ब्रीज किसे कहेंगे, जिसमें हम सिर्फ उसे फील कर पाए, जब थोड़ी थोड़ी हवा चल रही होती है तब हम उसे ब्रीज बोलते हैं. ओके, सो इट्स क्लियर द डिफरेंस बिटवीन ब्रीज एंड विंड. We can only feel breeze and we can feel and hear both for wind. Okay. Now what are air currents? So air currents को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको कि air currents क्या होते हैं, जो आपके ओशियंस, सी साइड्स पे, रिवर साइड्स पे जो आपकी एयर मूव कर रही होती है, जिसे हम विंड बोलते हैं. सो एक ऐसी टाइप की विंड होती है जो आपकी ओशियन साइड पे या रिवर साइड पे मूव कर रही होती है, उसे हम एयर करंट्स बोलते हैं और इसकी अपनी एक अलग स्पीड होती है. ओके.
सो यू आर क्लियर अबाउट द ब्रीज एंड विंड डिफरेंस. ब्रीज और विंड के बीच के जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर है. एंड एयर करेंट्स जो आपके रिवर साइड पे जो विंड फ्लो करती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है. ओके, एयर करेंट्स हम कब बोलेंगे? जब जो विंड है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जब वो विंड जो है वो मूव कर रही होगी रिवर साइड पे जो विंड फ्लो कर रही होती है, ठीक है, उसे हम एयर करेंट्स बोलेंगे. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ एयर करेंट्स. रिवर साइड पे विंड्स या एयर करेंट्स, अब तो आप यू आर क्लियर अबाउट एयर करेंट्स. ओके, जो एयर करेंट्स होती हैं वो रिवर साइड पे या ओशियन साइड पे कैसे फॉर्म होती है, क्या होता है, कैसे वो फॉर्म होती है, कैसे मूव करती है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सो फर्स्ट वन इज सी ब्रीज एंड सेकेंड वन इज लैंड ब्रीज. मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगी कि इफ यू वांट टू लर्न दिस देन फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड एंड फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी, तो आप उसको कैसे रिमेम्बर कर सकोगे, कैसे याद कर सकोगे. ओके, सो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक मैं आपको और बता दूँ, एक कि आपके जब हम लैंड एंड सी की बात करने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट लैंड एंड सी. ओके, सो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब आपकी सन रेज, सपोज यहाँ आपका सन है, ओके, जो हम कभी भी गए कभी रिवर साइड पे क्या होते हैं, आपकी लैंड भी होती है और ओशियन भी होती है. ठीक है, रिवर साइड पे आपका मीन्स रिवर भी होते हैं और आपका लैंड भी होता है, ये दोनों होता है. अब जब आपकी सनरेज फॉल होंगी लैंड के ऊपर क्या हुई, सनरेज फॉल हुई. अब सनरेज तो रिवर्स के ऊपर भी फॉल होंगी, रिवर्स के ऊपर भी सनरेज फॉल हुई. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मीन्स पहले कौन जल्दी वार्म होगा और पहले कौन कूल होगा. सो दी प्रॉपर्टी ऑफ लैंड इज दैट, लैंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि सन रेज लैंड को बहुत जल्दी क्विकली वार्म कर देती है, गर्म कर देती है, और जितनी जल्दी वो गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, उतनी ही जल्दी वो क्या हो जाता है, कूल भी हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है. अब बात ये आती है कि जब तक आपका सन रेज है तब तक लैंड वार्म रहेगा, गर्म रहेगा, लेकिन जैसे ही उतनी ही जल्दी गर्म हो जाएगा. लेकिन जैसे ही आपका इवनिंग टाइम आएगा, नाइट टाइम आएगा, वैसे ही सनरेज क्या होंगी, यहाँ से चली जाएंगी, और क्या होगा, लैंड क्विकली जल्दी से क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, ऐसा ही होता है लैंड में. ओके, अब बात करते हैं कि आपके रिवर के साथ क्या होगा. जो आपका रिवर होगा उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी से वार्म नहीं हो सकती, और अगर वो वार्म हो गई थोड़ी देर बाद तो वो क्विकली कूल नहीं हो सकती. ठीक है, जस्ट अपोजिट नेचर है आपके दोनों के, मीन्स रिवर के एंड लैंड के जस्ट अपोजिट नेचर है. अब हम ये बात करेंगे, आपने दोनों के नेचर के बारे में समझ लिया. चलो अब स्टार्ट करते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सो व्हाट इज सी ब्रीज? ब्रीज मैंने अभी आपको बताया था, स्लो मूविंग विंड, जो बहुत धीरे धीरे सूदिंग विंड टाइप, जो बहुत धीरे धीरे चलती है. ठीक है, तो ये वाली ब्रीज, जो सी ब्रीज हमने क्यों बोला, बिकॉज फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड. जब आपका ये ब्रीज कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड. सी मीन्स यहाँ से आपका जो है कहाँ मूव करेगा, लैंड की तरफ मूव करेगा. डायरेक्शन इस साइड होगा. अब इस साइड क्यों होगा, इस साइड इसीलिए होगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डे टाइम पे, अब आपको क्या देखना है कि डे टाइम पे, दिन के टाइम पे सन की रेस कहाँ आई, लैंड पे आई. लैंड क्या हो गया, वार्म हो गया, बहुत जल्दी वार्म हो गया. अब लैंड के कंपैरिजन में जो रिवर है, जो ओशियन है, उसका वाटर बहुत ही स्लो प्रोसेस से वार्म होगा. सो यहाँ का जो वाटर है वो यहाँ के लैंड के कंपैरिजन में थोड़ा कम वार्म होगा. और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वार्म एयर होते हैं, क्योंकि वो लाइट हो जाते हैं, लाइट वेट के होते हैं, तो वो कहाँ मूव करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. एंड जो आपके कूल एयर होंगे वो कहाँ मूव करेंगे, नीचे. ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो अब आप खुद सोचिए कि डे के टाइम पे, दिन के टाइम पे जब सनरेज आपके लैंड पे आई, लैंड बहुत जल्दी हॉट हो गया, बहुत गर्म हो गया, वार्म हो गया, तो इसके पास का जो एयर है, जो इसके पास का एयर है वो भी क्या हो जाएगा,
वो भी वार्म हो जाएगा। तो यही वार्म एयर क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और जो ओशियन है, लैंड के कंपैरिजन में जो ओशियन है, रिवर है, उसके पास का जो एयर है वो इसके कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा कूल है। वो तो उतनी जल्दी गर्म होता नहीं है, उतनी जल्दी वार्म नहीं होता, तो ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा कूल है। तो कूल एयर की हमने क्या पढ़ा था कि कूल एयर क्या होता है, हैवी होता है वेट में। अब वो हैवी होता है तो वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। और नीचे की तरफ जब वो मूव करेगा तो हमने देखा था कि जब आपका वार्म एयर ऊपर जाता है, वार्म एयर आपका इस तरह से ऊपर जाते हैं एंड कूल एयर आपके नीचे आते हैं, ऐसे आपकी विंड जो है एक दूसरे को रिप्लेस करती रहती है। तो कुछ ऐसा यहाँ हुआ है। लैंड डे टाइम में होता है आपका सी ब्रीज, डे टाइम पे आपका लैंड बहुत जल्दी क्विकली क्या हुआ, वार्म हुआ। वार्म एयर ऊपर तरफ गई क्योंकि वो लाइट होती है, और यहाँ जो ओशियन तरफ की जो एयर थी, जो विंड थी, वो क्या हुआ, जिसे हम ब्रीज बोल रहे हैं, वो क्या हुआ, बहुत धीरे से, क्योंकि वो वार्म हो रही थी तो वो थोड़ी कूल थी, तो वो क्या किया, वो इस तरह से यहाँ से मूव किया, यहाँ से ऐसे मूव किया, नीचे की तरफ आया। और जो हॉट एयर है, वार्म एयर है, वो कहाँ गया, वो ऊपर की तरफ गया। तो इस तरीके से जब आपका ब्रीज कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सी साइड से लैंड की तरफ मूव करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसे सी ब्रीज बोलेंगे। सी से लैंड की तरफ क्यों मूव किया ब्रीज, बिकॉज जो सी साइड पे डे टाइम पे ब्रीज थी वो क्या थी, कूल थी एज कंपेयर टू लैंड, और लैंड के ऊपर जो आपकी ब्रीज थी वो लाइट थी क्योंकि वो वार्म थी। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब इसे हम थर्ड पॉइंट इज दैट, और सेकंड पॉइंट ये कि डे टाइम पे, क्योंकि ये डे टाइम पे ही होगा, है ना, क्योंकि सनरेज तो डे टाइम पे ही आएगी। अब इसको ऑन शोर क्यों बोलेंगे, ऑन शोर का क्या मीनिंग है यहाँ पर, क्योंकि जो आपका ये जो साइड है, ओशियन का जो साइड है, जो यहाँ पे जो साइड होगा, वो वाले साइड पे से जो आपका एयर या विंड, आप जो भी बोलने से आप ब्रीज बोलते हैं, ये जो ब्रीज है वो किस साइड पे आ रहा है, वो हमारे किनारे पे आ रहा है। ठीक है, हमारे समुद्र के, हमारे आप बोलेंगे ओशियन के किनारे पे आ रहा है ना, क्योंकि सी साइड से लैंड पे आ रहा है, तो वो लैंड किनारे पे आ रहा है, रिवर के किनारे पे आ रहा है वो ब्रीज, इसलिए हमने उसे ऑन शोर बोला। ऑन शोर, शोर का मीन्स होता है कि आपका जो ओशियन है उसके किनारे पे आ जाना। ठीक है, तो इसे हम ऑन शोर बोलेंगे। अब जस्ट ऑपोजिट किसके साथ होगा, लैंड ब्रीज के साथ होगा। अब जब आप सोचिए, अभी तो सनरेज आ रही है, यहां से सनरेज क्या हुई, धीरे धीरे करके एंड हुई। क्यों हुई, बिकॉज अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, इवनिंग टाइम आया, इवनिंग टाइम के आने की वजह से जो सनरेज है वो चली गई। अब जब सनरेज चली गई है, नाइट हो गया है, तो नाइट के टाइम पे क्या होगा, मैंने बोला था आपको कि लैंड बहुत जल्दी, जितनी जल्दी वो वार्म होता है उतनी ही जल्दी कूल भी हो जाता है। तो इसके पास के जो एयर रहेंगे, इसके पास के जो ब्रीज रहेंगे, लैंड के पास के जो ब्रीज रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो बहुत जल्दी कूल हो जाएंगे। बहुत जल्दी, जैसे वार्म हुए थे वैसे ही बहुत जल्दी क्या हो गए, कूल हो गए, क्योंकि सनरेज तो चले गए हैं। अब इसे वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए क्या कोई यहाँ पर है, नहीं, तो इसके ऊपर की जो ब्रीज है वो क्या हुई, बहुत जल्दी कूल हो गई। अब अगर मैं बात करूं ओशियन के साइड की, जो ओशियन के साइड पे, ओशियन के ऊपर जो ब्रीज है उसका क्या होगा, वो तो उतनी जल्दी, वो तो गर्म तो हो गया था, वो तो वार्म तो हो गया था, बट क्या वो उतनी जल्दी कूल हो पाएगा, नहीं। हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि ओशियन में रिवर के ऊपर की जितनी भी ब्रीज होती है वो उतनी जल्दी से क्या नहीं हो पाती, कूल नहीं हो पाती। अब देखिए ये रिवर्स हो गया है, जैसे सी ब्रीज में क्या था कि सी ब्रीज में सी के ऊपर के जितने भी ब्रीज थी वो क्या थी, वो थी कूल, यहाँ वार्म था, तो वार्म ऊपर जाते हैं और कूल नीचे आते हैं, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ रिवर्स है, अब क्या है, लैंड का जो ब्रीज है वो कूल है, और अगर आप बात करेंगे सी या ओशियन की, तब क्या है, वहां पर वार्म है।
जितना सनरेज मिला उसकी वजह से वो क्या हो गया, ब्रीज वहां का वार्म हो गया। अब ऑपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ कूल है तो हमने क्या देखा था, कूल एयर क्या होता है, डायरेक्शन चेंज, कूल एयर नीचे आते हैं बिकॉज ये हैवियर है, और ओशियन के साइड पे जो आपका ब्रीज होता है, ये ब्रीज क्या होगा, क्योंकि वो वार्म है तो वो लाइट है, लाइट वेट है, हल्के हैं तो वो ऊपर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी, कहाँ से कहाँ ब्रीज मूव करेगी, कहाँ से कहाँ हल्की हल्की हवा चलेगी, फ्रॉम लैंड से ब्रीज जो चलेगी वो सी की तरफ या ओशियन की तरफ चलेगी, ठीक है। उसका डायरेक्शन अब इस साइड हो गया, क्योंकि अब इस साइड हो गया, अब वो लैंड में किनारे पे जहाँ ब्रीज था वहां से वो कहाँ जा रहा है, ओशियन की तरफ चला जा रहा है। वो तो अपने पानी में उधर ओशियन की तरफ चले जा रहे हैं जो ब्रीज है वो, तो इसीलिए हम इसको ऑफ शोर बोलेंगे, क्योंकि किनारे से तो वो वापस वहां चले जा रहा है जहां पर आपका वाटर है, ठीक है, वाटर है, उसके ऊपर आपकी जो ब्रीज है वो चली जा रही है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ऑफ शोर बोलेंगे। सो द डिफरेंसेस आर क्लियर, व्हाट इज सी ब्रीज एंड व्हाट इज लैंड ब्रीज। सो सी ब्रीज, द डिफरेंसेस आर, सी ब्रीज में फ्रॉम सी टूवर्ड्स दी लैंड, ब्रीज कहाँ मूव करेगी, कहाँ से कहाँ मूव करेगी ब्रीज, सी से या ओशियन से लैंड की तरफ मूव करेगी, और लैंड ब्रीज में फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी। कब होगा सी ब्रीज, जब डे टाइम होगा, क्योंकि उसी टाइम पे सन रेज होंगी। अब लैंड ब्रीज कब होगी, जब नाइट टाइम, जब आपका नाइट का टाइम होगी, उस टाइम पे सन रेज नहीं होंगी। हम सी ब्रीज को और क्या बोलते हैं, ऑन शोर, एंड लैंड ब्रीज को ऑफ शोर। इफ यू वांट टू रिमेंबर द डिफरेंस, देन अगर आपको सी ब्रीज बोलते हैं, व्हाट इज सी ब्रीज, तो द ब्रीज विच मूव्स फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड, जो सी से लैंड की तरफ जाते हैं उसे सी ब्रीज बोलते हैं, एंड जो लैंड से सी की तरफ जाते हैं उसे हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। जहां से जाएंगे हम उसको वो नेम देंगे, ओके। सो द टॉपिक इज क्लियर कि कैसे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ब्रीज मीन्स जो आपकी हल्की हल्की हवा चलती है ना, हम उसे बोल रहे हैं, ठीक है, इस साइड की और इस साइड की, क्लियर। So after we have discussed what are land breeze and sea breeze, then we will discuss about water. So our next topic is water. As you all know that water, the 71% of the earth's surface is covered with water only. That's why we will call earth, we are call the earth as a blue planet. हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं अर्थ को, बिकॉज द 71% जो मैक्सिमम सरफेस है अर्थ का वो वाटर से कवर है। सो व्हाट आर दी स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, हाउ इट चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, किन किन स्टेट्स में चेंज होते हैं, एंड आपने अभी तक देखा भी है, बस आपने कभी उसे नोटिस नहीं किया। सो वाटर विच इज इंटरचेंजेबल फॉर्म, वाटर कैसे होते हैं, जो आपके पानी होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, मीन्स आपके वन स्टेट से सेकंड स्टेट में चेंज होंगे, सेकंड से थर्ड में चेंज होंगे, एंड थर्ड से वापस किस में चेंज हो जाएंगे, आइस में चेंज होंगे। अब वो प्रोसेस कैसे होती है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। आपने कभी देखा है आइस क्यूब्स, आपके घर में होंगे आइस क्यूब्स होंगे, आइस क्यूब्स जब होते हैं आप उसे फ्रीजर में रखते हो, फ्रीजर में रखते हो तभी आपके आइस क्यूब्स बनते हैं, मीन्स आपने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है फ्रीजर का, तो आपका क्या फॉर्म होता है, आइस फॉर्म होता है, और आइस एक सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में होता है वो, ओके, तो सॉलिड फॉर्म में होता है तब हम उसे आइस बोलते हैं। अब जब यही आइस को आप आइस क्यूब्स के आपने सपोज ट्रे को बाहर निकाल लिया, ठीक है, फ्रीजर के बाहर, मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर में आपने रख लिया, रूम टेम्परेचर में आपने रखा, किचन में आपने एक स्लैब के ऊपर छोड़ दिया, ओके। अब क्या होंगे, वही आइस क्यूब्स किस में चेंज हो जाएंगे, वाटर में चेंज होंगे, दीज आइस क्यूब्स विल चेंज इनटू वाटर, वाटर में चेंज हो गए। अब वाटर कौन सा फॉर्म होता है,
लिक्विड फॉर्म होता है ना, वाटर एक लिक्विड फॉर्म होता है, तो वो वाटर में चेंज हो गए। देन अब आपने कभी देखा है कि कभी आप एक यूटेंसिल लेते हैं, यूटेंसिल में आपने कभी कोई वाटर फिल किया होता है कि चलो हम बॉईल करते हैं, वाटर को आपने बॉईल किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, डे बाय डे देखो टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, इसमें आपके बहुत लो टेम्परेचर था, फिर थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ा, रूम टेम्परेचर में आया। अब रूम टेम्परेचर में आने के बाद आपने क्या किया, गैस ऑन किया, गैस के नॉब जब आपने ऑन की तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, आपने जैसे ही वाटर को बॉईल करने के लिए रखा, ठीक है, यहाँ पे गैस स्टोव से आपने यूटेंसिल को बॉईल किया। अब यहाँ पे जो वाटर है आपने क्या किया, उसे एक प्लेट उसके ऊपर क्या किया, ढक दिया, ठीक है, एक यूटेंसिल लिया जिसमें आपने वाटर फिल किया, उसके ऊपर आपने प्लेट से उसे इस तरह से ढक दिया। अब आप क्या देखेंगे, कुछ I think 5 to 10 minutes, after 5 to 10 minutes you will notice that if आपने जैसे ही उस प्लेट को उठाया, आपने क्या देखा, गैस के नॉब आपने बंद कर दी, आपने क्या देखा, उस प्लेट में क्या थी, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स थी, यू विल फाइंड सम वाटर ड्रॉपलेट्स देयर। जैसे ही आपने प्लेट को उठा के देखा तो इसमें क्या होंगे, कुछ कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स होंगी, कुछ कुछ वाटर की बूंदें होंगी, आपने देखा। वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, वो दैट वाटर ड्रॉपलेट्स आर नोन एज वेपर, वही वाटर वेपर है, और वो किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। अब आप देखेंगे कि अगर आपने उस प्लेट को नहीं रखा होता, अगर आपने उस प्लेट को नहीं रखा होता और आपने ऐसे ही वाटर बॉईल किया होता, तब आपने नोटिस किया होगा, कभी आपने नोटिस किया होगा कि उसमें से क्या उठ रहा होता है, जब यहाँ प्लेट नहीं रखा होता तो इस तरह से, जिसे आप भाप बोलते हो ना, जब स्टीम बोलते हो, वो इस तरह से ऐसे उठ रहा होता है, ठीक है। बट आपने क्या किया, वहाँ प्लेट से उसे ढक के रखा, उसने आपने बाहर जाने का चांस ही नहीं दिया, तो वही वो अंदर में क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया, ठीक है। वही क्या होता है, इसी को हम वेपर बोलते हैं, ओके, जो कि गैस फॉर्म में रहती है। अब जब आप उन वाटर ड्रॉपलेट्स को, प्लेट को वहाँ रखे रहोगे और आपने गैस नॉब बंद कर दिया, जैसे ही आपने बंद किया तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स वापस से वाटर में चेंज हो जाते हैं। आप देखना, कभी आप ये एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देखना, मैं आप सभी को बोलूँगी कि आप इस एक्सपेरिमेंट को घर में करके देखिएगा। आपने गैस नॉब बंद कर दिया, आपने प्लेट को रखा हुआ है, अब जैसे ही आप उसे उठाएंगे कुछ 15-20 मिनट्स बाद, तो आप देखेंगे कि वही वाटर ड्रॉपलेट्स जो इतने हॉट थे, वो गैस फॉर्म में थे, वो अब वो क्या हो जाएंगे, आपको वाटर ड्रॉपलेट्स किस में दिखेंगे, अब वो आपको वापस से वाटर में चेंज होते हुए दिखेंगे, पानी पानी हो जाएंगे, वाटर हो जाएंगे। तो ये वापस से किस में चेंज हुआ, वाटर में। अब जब उसी वाटर को आप टेम्परेचर और कम कर देंगे तो वो फिर किस में चेंज हो जाएंगे, आइस में चेंज हो जाएंगे। सो वी कैन से दी वाटर इज अ इंटरचेंजेबल स्टेट, हमेशा वो इंटरचेंजेबल स्टेट में रहते हैं। आप आइस को वाटर में चेंज कर सकते हैं, वाटर टू वेपर, देन यू कैन चेंज वेपर टू वाटर एंड वाटर टू आइस। सो वाटर हैव 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 स्टेट्स में वाटर हो सकते हैं। Now we will talk about evaporation and condensation. First, evaporation. So what happens with evaporation? Evaporation के साथ क्या होती है, जैसे ही आपकी जो सन की रेज है वो वाटर के ऊपर आती है, तो वही वाटर किस में चेंज होते हैं, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। जब आपका, मैंने अभी बताया कि जब वाटर को आप टेम्परेचर हाई कर दोगे, टेम्परेचर उसका हाई करोगे, तो वो वाटर बॉईल होगा, बॉईल होकर वो क्या होगा, ऊपर उठेगा। हमने देखा था ना, वाटर क्यों ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, बिकॉज वाटर बॉइल्स and due to the heat, due to the temperature high, due to the temperature rises, these steams, these vapor are light in weight, due to that it begins to start blowing. अब जैसे ही आप देखिए, वाटर है यहाँ पे आपके पास में, यहाँ आपने क्या किया, सनरेज आई, सनरेज क्या होंगी, बहुत ज़्यादा हॉट होती है, तो वो हॉट सनरेज की वजह से जो आपकी वाटर है वो किस में चेंज हो जाएगी, वाटर वेपर में चेंज हो जाएंगी, ठीक है, वो किस में चेंज आएगी, वाटर वेपर में। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवापोरेशन। इवापोरेशन आप कब बोलेंगे, जब आपका वाटर किस में चेंज हो जाए, वाटर वेपर में, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। सन की हीट की वजह से वाटर किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में।
अब हम बात कर लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से आपके इवापोरेशन या तो इंक्रीज होगी और इट विल डिक्रीज, ठीक है, या तो वो कम होगी या तो वो ज्यादा होगी। ऐसे कौन कौन चीजें हमें कुछ सराउंडिंग में ऐसा करना पड़ेगा ना जिसकी वजह से अगर कुछ ऐसा हुआ हाँ तो इवापोरेशन बढ़ेगा, अगर कुछ उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट नहीं रहा तो इवापोरेशन कम होगा, मीन्स वाटर वेपर में कम चेंज होगा। ओके, नाउ द फर्स्ट इज टेम्परेचर। आप सबको पता है जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा वाटर किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा, तो उतना ही ज्यादा इवापोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। इफ विल इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ इवापोरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज, इवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड विंड। अच्छा, पहले हम थर्ड की बात कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट सेकेंड एंड फोर्थ। थर्ड वन इज सरफेस एरिया। सपोज इतना है आपके पास में वाटर, ओके, इतना ही आपके पास वाटर है, सन की जो रेज है वो इतने पोर्शन पे आ रही है, तो जो वाटर से वेपर बनने की जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी, वो इतनी होगी, ठीक है, सपोज इतनी हुई। बट अगर मैंने सरफेस एरिया इंक्रीज किया, मीन्स अगर मैंने वाटर यहाँ तक दे दिया, ठीक है, इतने सरफेस एरिया मीन्स जहाँ पे जितने वाटर को वाटर वेपर में हमें कन्वर्ट करना है, अगर मैंने वो इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, वाटर वेपर भी इंक्रीज होगा ना। तो आपका सरफेस एरिया जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही रेट ऑफ इवापोरेशन विल इंक्रीज। नाउ विंड एंड ह्यूमिडिटी। नॉट टॉक अबाउट विंड एंड ह्यूमिडिटी। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? The water vapor which is present in the air is known as humidity. Suppose आपके एयर में भी बेटा वाटर प्रेजेंट होते हैं, हमने ये पढ़ा है कि वाटर में भी क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, मीन्स वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर का कोई ना कोई फॉर्म एयर में भी प्रेजेंट है। तो एयर में भी जब आपके इस तरह से वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है, ये आपके क्या हुए, वाटर वेपर प्रेजेंट हुए। बट जब हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर एक जगह की बात करेंगे, सपोज मैंने इतने जगह की बात की, ठीक है, मैंने इतने स्पेस की बात की, यहाँ पर ऑलरेडी आपके क्या प्रेजेंट है, यहाँ ऑलरेडी आपके वाटर ड्रॉप्स, वाटर वेपर प्रेजेंट है। देखो, जब इतने जगह पर वाटर वेपर प्रेजेंट है और मुझे कन्वर्ट करना है वाटर वेपर को, मुझे कन्वर्ट करना है वाटर टू वाटर वेपर, यहाँ पे आपका वाटर है, यहाँ से जो सन रेज है वो इस पे आएंगी, ठीक है, अब ये किस में चेंज करेंगी, वाटर वेपर में चेंज करेंगी। बट प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि इस स्पेस में वाटर वेपर को जाना है, बट यहाँ उसके लिए स्पेस ही नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे वाटर वेपर्स के ड्रॉपलेट्स है ना कि यहाँ से जो वाटर वेपर बनेगा, वाटर से वाटर वेपर जो बनेगा उसके लिए यहाँ कोई स्पेस ही नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो आपकी विंड है, जिनकी हम विंड की बात कर रहे थे, ठीक है, जैसे ही ये जो विंड है, ये हवा यहाँ से चलेगी, विंड जैसे ही आई, हमने देखा था विंड क्या है, विंड बहुत स्ट्रांग होती है, तो जब यहाँ से विंड आई तो विंड हवा अपने साथ क्या करेगी, कुछ ड्रॉपलेट्स को यहाँ से अपने साथ ले करके, हवा अपने साथ लेके इस साइड आ जाएगी, ठीक है, बाहर निकाल के इस साइड ले आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ड्रॉपलेट्स जब वाटर के जो वेपर्स हैं वो आपके बाहर आ जाएंगे, तो वो वाटर वेपर्स की जो स्पेस है वो खाली हो जाएगी। अब जब यहाँ वाटर वेपर की स्पेस खाली हो गई है, तो यहाँ का जो वाटर है वो जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो यहाँ पे आ सकता है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि इफ दी विंड विल इंक्रीज, जैसे ही विंड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ उतनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी। अब जब मैं बात करती हूँ ह्यूमिडिटी इन द एयर, अब अगर ह्यूमिडिटी क्या है, एक वाटर वेपर है जो एयर में प्रेजेंट है। अब आप बताइए, अगर एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है और ये सन रेज की वजह से वाटर वेपर में चेंज करना है, तो क्या एयर में उतनी स्पेस है कि वो वहाँ पर उतने वाटर वेपर को अपने अंदर ले पाए?
यहाँ ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी क्या है, एक टाइप का वाटर वेपर है, मॉइस्चर है एयर में जो प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी ऑलरेडी वाटर वेपर यहाँ प्रेजेंट है और सन रेज वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। बट ये वाटर वेपर जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि एयर में तो ऑलरेडी ह्यूमिडिटी वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो ये प्रॉब्लम होती है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इवापोरेशन विल इंक्रीज। इफ यू इंक्रीज विंड, जैसे ही आपकी विंड इंक्रीज होगी इवापोरेशन विल इंक्रीज। इफ यू इंक्रीज सरफेस एरिया, आप सरफेस एरिया जितना बढ़ाएंगे इवापोरेशन विल इंक्रीज। बट जब आप ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन डिक्रीज होगा। ये एक ऐसा फैक्टर है कि ह्यूमिडिटी, क्योंकि जब आपके वाटर वेपर ज्यादा होंगे आपके एयर में तो इवापोरेशन क्या होगा, वो तो कम होगा ना, वो कहाँ बनाएगा, वो उतना बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बनाएगा भी तो जाएंगे कहाँ, वो स्पेस ही नहीं है उसके लिए। सो इसलिए बोला जाता है कि जितना कम ह्यूमिडिटी होगा उतना ही ज्यादा आपका इवापोरेशन का प्रोसेस होगा। सो नाउ यू हैव understood the process, the interchangeable state of water, and what is the process of evaporation and what are the factors which are affecting evaporation. Now we will discuss the reverse process of evaporation. Condensation, water, when water changes into water vapor. ठीक है, जब वाटर आपका किस में चेंज होगा, वाटर वेपर में। सो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस, जस्ट उससे रिवर्स है। व्हेन वेपर चेंजेस इनटू वाटर, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा था। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से वाटर वेपर में चेंज हुआ था। बट जब हमको वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करना है तो हमें रिवर्स प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। हमको पहले क्या देना पड़ा था, हीट देना पड़ा था, है ना। इवापोरेशन में हमने हीट दिया था, बट इसमें हम क्या करेंगे कंडेंसेशन में, जब आपका कूल होगा, ठीक है, जब आपका जो वेपर है, वेपर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग of vapor into water vapor, the process of changing of water vapor to water during the cooling process, जब वो कूल होंगे तभी होंगे, ड्यू टू द कूलिंग प्रोसेस। जब वो कूल होंगे तो वाटर किस में कन्वर्ट होंगे, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो, वाटर वेपर। सो जैसे ही हमने हीट किया वाटर को, वाटर किस में चेंज हुआ, वेपर में चेंज हुआ, जिसे हमने क्या बोला, इवापोरेशन, ड्यू टू द हीटिंग प्रोसेस। अब जब वही वेपर कूलिंग प्रोसेस में, जब हमने उसे कूल किया, ठंडा किया, तो वही वेपर किस में चेंज हुआ, वाटर को, तो हमने क्या बोला, कंडेंसेशन बोला। इट इज क्लियर कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वेपर इनटू वाटर इज नोन एज कंडेंसेशन ड्यू टू द कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ कि कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, how they form, what is the process of formation, and what are the factors which are affecting the process of evaporation. These are clear. So the deep knowledge of condensation and the brief we will discuss in our next video, in our next class. So I hope